फिजिक्स पेपर दो चीजें स्टार्टिंग में बता देता हूं आपको। इन फिजिक्स पेपर मोस्ट प्रोबेबली दो चीजें होती है, द लूजिंग ऑफ कॉन्फिडेंस व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है हमको आंसर आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा, ये बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है फर्स्ट। सेकेंड जो होता है जो मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है कि व्हाइल राइटिंग द थ्योरी क्वेश्चन हमको समझ भी नहीं आता कि कितना लिखना है, क्या लिखना है, बहुत सारी स्टेप्स स्किप हो जाती है। ये मेन दो प्रॉब्लम्स है जो जनरली फेस किए जाते हैं। सो आज के सेशन में मैं दोनों प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करूंगा। ये बस आंसर दिया आपको, फोटोवोल्टिक सेल अभी बताया मैंने आपको, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 1, उसके बाद यहाँ ऑप्शन नंबर 1, यहाँ ऑप्शन नंबर बी, अभी मैंने समझाया सबको, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ये ऑप्शन नंबर ए, यस, ये ऑप्शन नंबर ए अभी बताइए, ये यस, ये फोर्थ। हाँ, नाउ ये क्वेश्चन बहुत सारे जनों का रॉन्ग हुआ होगा क्योंकि आपने क्या किया है, गिवन वैल्यूज को थोड़ा देखा नहीं आपने। ये गिवन वैल्यू थी, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर में यहाँ गिवन था, सो यही वैल्यू लेनी थी, तो सबका आंसर 720 आया। 720 आपका आंसर नहीं आता, अगर आप लॉजिकली इसको देखते ना तो आपका आंसर 720 नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया इसमें, इन दैट केस what you observe, the radius, air bubble of radius 0.2 mm is situated just below a water surface and the pressure is given, tension is given. Of course, when we calculate the things, already the surface tension of water is already constant. It is already known to us, but probably this is the surface tension of the hard water, which is already given. So you have to put the value which is given. सो मैक्सिमम जनों का जो आंसर आया है, जो चेकिंग हुई पेपर में, उसमें 720 आया, रादर करेक्ट आंसर इज 72 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So you can understand from this. So this is important. Now next question is a common base transistor, a gain is given. Now you know the formula for the gain. Yes, yes, the gain is given alpha. Yes, so 1 minus, yes, beta upon 1 minus beta. So value is given. So beta value is given. The answer ये सबका correct आया maximum 49 is the final answer. Now let me read out the next question, which is the mixture of fuel and oxygen burn at constant volume. Just underline the word constant volume. When the volume is constant, how can you say there is work done? You already know. So everyone must have understood this. Important point is when we say the volume is constant, of course, in that case, the work done is zero. Of course, it is very simple. So you can say the work done is zero. Now, chamber is surrounded by the water bath. It must have cooled. So internal energy must have reduced. So internal energy having a negative sign. So it is already given. It has negative sign. It's very easy. Simple harmonic motion, magnitude of SHM is directly proportional to the angular momentum. Angular displacement. When we talk about a directly proportional angular displacement, then we call as the angular SHM. तो ये चीज होनी चाहिए आपको. Yes. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये वर्ड आना चाहिए था डेफिनेशन में. एंड दिस वाज द फिफ्थ क्वेश्चन एंड बहुत सारे जनों ने करेक्टली सॉल्व किया एंड इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन. फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई अ कैपेसिटर बिहेव like a pure conductor. You already know when the AC circuit is there, the frequency is very high. As the frequency is very high, the capacitance is already low, capacitive reactance is low. As there is no opposition, it will behave as a good conductor. So most probably when we talk about the frequency is higher, then the capacitor behave as a good conductor. So that was the simplest solution. और ये सबको आया है, good thing. Now junction की definition जो है बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लिखी है, उसके अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, बट मैं अगर आपको जनरल डेफिनेशन बताऊं, जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर करंट डिवाइड और द करंट कंबाइन. मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहां करंट कंबाइन होता है
ये पॉइंट है, यहाँ करंट आया, or other you can say this is the current which is entering to the junction and it is leaving to the junction. So the point where current enters or current combines or current divide, it is known as junction, but standard definition written in the answer sheet. So this is what a join together. Now the important point is the work done that we already saw the numerical, same numerical और यहाँ आया था. The work done is 1 upon R1 minus 1 upon R2. You have to add it. ये बहुत कम लोगों ने सॉल्व किया है, बहुत, and honestly बहुत सारे जिन्होंने पेपर सॉल्व किया है. Like I am very happy कि maximum people from your class they have solved by their own. Otherwise they would have copied this. किसी ने ये छुड़ाया नहीं. अगर उन्होंने कॉपी किया होता तो ये भी सॉल्व करते. अच्छा किया उन्होंने वो नहीं किया. For the photoelectric parents were there. ऐसा भी हो सकता है. The photoelectric effect, इसका आंसर क्या है? Red light not possible, microwave not possible. Yes, they having very low energy to penetrate the electrons from the photoelectric material, and उसको pump out करके just वो pump out करोगे and after pumping out उसको निकालना it is very difficult. In single word, they don't have that much of energy to satisfy the function called as photoelectric work function. Photoelectric work function कोई satisfy नहीं कर पाएंगे, so it is very difficult to kick them out. Okay, so that was the important thing. Now let's move for the section number B. I already told कि first session में आपको कितना टाइम देना है, second session में कितना टाइम देना है. So that is completely 1 hour आपको देना है very short answer question को, section A, section B. Now you can increase the time. But I'm saying at least 1 hour, at least 1 hour. That is very important. Now, how much work require from for a radius 2 centimeter in the soap solution? Of course, in this question we have to find out the work done by using the surface tension formula. So work done is equal to T dot dA. Just we have to find out the area, choosing the area. By putting the area, the bubble having the sphere, so pi r square or pi r square, it is the area, surface area of the sphere, not a volume. So change in that area give rise to the work done. That was most simplest problem, and most of the logo ne usko solve kiya. So that is fine. Now the question number 4, the Stephen's law. Obtain the expression for heat loss in the black body. So this is the theory. And it is directly proportional to 4th power of the temperature. Always remember, this is called as sigma, which is termed as a Stephen's constant, called as Stephen's constant, whose value is already given in the all question where we ask the numericals. So ये बहुत simple चीज था, बस दोनों का change लेना था. बहुत कम लोगों ने solve किया actually. Yes. Now resistance or reactance, you all maximum लोगों ने ये question solve किया. It is like very easy question when we compare the resistance and reactance. We already know resistance is a thing which is based on the property of heat, where reactance is like independent of it. The reactance value may changes with the change in the frequency, where resistance value do not changes with the change in the frequency. It is of course it do not consume any power. It consumes the power. It is of course you can draw the symbol, you can draw the unit, you can write the unit. Anything you can write. The 4 points were expected. Any two difference were expected. So that was sufficient. Yes. Now a string fixed at one end, other end moved up down. So that it is important question. एक string है जिसकी length 1 meter है. This was textbook question. जिसकी length 1 meter है, उसको free end से up down move किया है. That is important. Up down move किया है, and the 4 complete loop. हो गया complete? इन्होंने क्या थोड़ा? So इसमें क्या है, इस लूप में आपको खुले लूप बताना है आपको ऐसे. ये प्रॉब्लम भी टेक्स्ट बुक का ही है. ऐसा यहाँ प्रॉब्लम क्या था ऐसे. So you can write like this. So 4 loop 1, 2, 3, 4. ये 4 loop लगेंगे ऐसे. 4 loop, yes. और इसलिए इसकी लेंथ जो हो जाती है 9/4 लैम्बडा हो जाती है. और आपने बहुत सारे लोगों ने किया है शायद. ये शायद किया है मुझे
यार यहाँ जो होती है ना 9/4, तो यहाँ जो एक शॉर्टकट ट्रिक जो था ये चीज था, यहाँ ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड होता है क्योंकि उसने एक नोड को अप डाउन मूव किया है ना, दैट इज द रीजन। अब देखो इसके बाद कुछ क्वेश्चन है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था और सबने सॉल्व किया और ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसका इंपॉर्टेंस भी है, ये पेपर में भी आ सकता है। ये भी डायग्राम सबने लगभग लगभग ड्रॉ किया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, इसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं थी। वेसल वाला क्वेश्चन भी जिसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करना है, रेशियो 2:1 आता है, ये सबने सॉल्व किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये लैम्बडा वेवलेंथ वाला ये भी सबने सॉल्व किया है, वेयर व्हाट वी ऑब्जर्व इज द वेवलेंथ इज रिड्यूसेस बाय द फैक्टर म्यू। किरचॉफ्स का लॉ भी सबने 99.99% लोगों ने सॉल्व किया है। द करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग टू द जंक्शन। सर्किटल लॉ भी क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एलिमेंट is equal to what? Product of current and resistance is come out to be a zero. That is voltage. Potential differences come out to be zero. उसके साइन कन्वेंशन भी सबने लिखे। ये प्रॉब्लम में थोड़ी सी दिक्कत हुई कि माइनस साइन नहीं लिया था उन्होंने, -6 नहीं लिया था, तो आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है बच्चों की। अदरवाइज दैट वाज इजीएस्ट क्वेश्चन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, दिस वाज द थ्योरी क्वेश्चन एंड गिवन इन द टेक्स्ट बुक एंड इट इज इजीएस्ट क्वेश्चन। मेटल डिस्क वाला भी बहुत कम लोगों ने सॉल्व किया है, where you have to find out the area of sector. अगर आपको area of sector पता रहा, so you can solve this problem. So that was the problem. Yes, easiest problem. Yes. Now, after that, रॉड, मेटेलिक रॉड वाला क्वेश्चन था। हाँ, इसमें सबने जो रिलेशन यूज किया रिलेटिव परमिटिविटी का 99 आंसर निकाला, सबने 19 निकाला। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली सब हर लोगों ने सॉल्व किया। आई थिंक ये नोन क्वेश्चन होगा आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन भी थ्योरी क्वेश्चन है जो आया है अपने बुक में, जो पावर का रिलेशन बताता है। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज ऑलवेज देयर और हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये आईज बार के लिए इंपॉर्टेंट करें। अब ये नया इंट्रोड्यूस किया गया, इसके पहले थोड़ा होता नहीं था, ये इसका अलग फॉर्म हुआ करता था। सो यू कैन ट्रीट एज 16th क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। यस, नाउ दिस वाज द वेरी इजी क्वेश्चन 1992। बहुत सारे लोगों ने 1992 वाला एक क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व किया और सब लोगों ने इसका आंसर लाया। दिस इज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सीरीज वाला अच्छा था, ये तभी भी नॉन क्वेश्चन था। इन दैट केस उसने बोला है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइबल सीरीज, ये जो है इज इक्वल टू द, यहाँ λ/4 चाहिए, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ λ/4 चाहिए, यहाँ लैम्बडा ये 4 चाहिए, बाय 4 चाहिए, डिवाइड बाय 4। सो दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया था, शो करना था। बहुत सारे लोगों ने शो किया। ये लिमिटिंग सीरीज का मतलब इंफिनिटी होता है, ये सबको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ एलईडी था आपके बुक में, वहां एलईडी है, तो एलईडी का सबसे ज्यादा सभी लोगों ने लिखा है, एलईडी लिखा है सब लोगों ने और करेक्ट भी किया है। यस, न्यूटन स्टार वाला भी सब लोगों ने किया, ये भी सिंपल है, हाफ mv² है, तो v की वैल्यू निकालना है तो 2 उधर चला जाएगा, ये निकल गया, ये भी निकाल लिया। वर्डन का सबने किया है, जस्ट वर्डन का उसने प्रेशर और वॉल्यूम को कंपेयर किया है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, बस बहुत सिंपल। दिस वाज द एम्पियर सर्किट लॉ का डेरिवेशन जो था करंट के लिए, ये भी बहुत सारे लोगों ने किया है, B = μ0 Ni वाला। यस, अगर आपने किया होगा तो अच्छी बात है। और कैपेसिटेंस का A ε0 D वाला ये भी किया है, इसमें डायग्राम वगैरह इतनी ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं। लूप वाले में 3 डायग्राम एक्सपेक्टेड, देखो 3 करेक्ट डायग्राम पे 1.5 मार्क था। अगर आपने 3 करेक्ट डायग्राम बनाए होते तो 1/2 ऑफ मार्क इस डायग्राम पे था। और ये डेरिवेशन था, फाइनल डेरिवेशन, ये सबने किया है वैसे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। 25 वाला भी क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम जो किया है, जस्ट गड़बड़ यहाँ हुई कि उन्होंने ये फाइनल आंसर में थोड़ा सा यहाँ 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ तक उन्होंने छोड़ा है, जस्ट 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो दैट वाज द प्रॉब्लम। यस, ये हुआ था। तो यस, सो ये चीज आपको देखने को मिली। अब उसके बाद ये टाइम पीरियड का डेरिवेशन था, पेंडुलम, दैट वाज आल्सो द सिंपल क्वेश्चन। सो आपको रफ बुक लेके लिख के देखना पड़ेगा। एंड एक्सप्रेशन फॉर वर्डन इन adiabatic, इट इज अ कन्वेंशनल क्वेश्चन which is already there and you can treat as it is important. Yes, with the similar kind of numerical where the sensitivity check I की वैल्यू। ये वाला क्वेश्चन में बहुत एम्बिग्यूटी आई, कितने लोगों ने 96,000 लिखा,
इस लोगों ने 46,000 लिखा। तो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर लिखा, पर मेरे ख्याल से दोनों भी करेक्ट है मेरे ख्याल से। बट इन द स्टैंडर्ड आंसर शीट देयर वाज लाइक ये आंसर दिया है, सो इट इज करेक्ट। बट मुझे जो लग रहा है दोनों भी करेक्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम का बस यहाँ यूज कर थोड़ा सा एल कांस्टेंट है, ये भी कन्वेंशनल डेरिवेशन है। कैपिलरी एक्शन के ऊपर बहुत सारे जनों ने लिखा, इतना लंबा लिखा कि उनको समझा ही नहीं कितने मार्क का है। वहां डेरिवेशन 2 मार्क का था, उसके बाद न्यूमेरिकल कितने मार्क का था, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कौन से इसको कितने मार्क्स है, ये आप अच्छे से देखिएगा आपके पास जब ये पहुंच जाएगा। और डिराइव्ड एक्सप्रेशन ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको भी मैंने सिखाया उनको बताया था ये 4 मार्क के लिए आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी भी आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्योरी फॉर इंटरफेरेंस बैंड जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता ही है कि बैंड्स इक्वली स्पेस्ड बताता है, और कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए पूछता है हमेशा। उसके बाद 31 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, अल्टरनेटिंग करंट दिया है, वैल्यू दी है फ्रॉम 0 टू आरएमएस, इसमें उसके बाद चीजें दी थी, आई की वैल्यू दी थी, और यहाँ आपको निकालना था टी, और लास्ट इसमें निकालना था रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में लिखना था। ये बहुत कम लोगों ने किया है एक्चुअली, जिन लोगों ने भी किया उन्होंने घर से ही देख के लिखा। सो बहुत सारे क्वेश्चंस इजी थे। सो बस मैं एक ही बोलूंगा आपको